Number two basically deals with the price system. And we know ये price system market economy की बात हो रही है because कमांड के अंदर तो प्राइस सिस्टम नॉर्मली होता ही नहीं है, मिक्स में जरूर होता है. द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड डिमांड की डेफिनेशन एंड डिमांड curve key definition. They're two different things, right? We've spoken about earlier also. Demand is the willingness and ability of consumers to buy a product at various price levels in a given period of time. Demand curve, on the other hand, shows an inverse relationship between price and quantity demanded. It's a micro study, right? एक individual high price पे कम खरीदना चाहता है, low price पे ज्यादा खरीदना चाहता है. Similarly, producer supply क्या होती है? Willingness and ability of producers to produce a good at various price levels in a given period of time. और जो है supply curve क्या होता है? Supply curve shows a positive relationship between price and quantity supplied. जहां ये दोनों meet करते हैं, हम कहते हैं that is where your market equilibrium is. जहां पे price जो है वो PO है और quantity जो है वो QO है. We say ये equilibrium price है, ये equilibrium quantity है, which means that at this price, whatever you're producing is being bought. तो ये कंज्यूमर के लिए भी देर इज नो शॉर्टेज, देर इज नो सरप्लस, बट देर इज अ स्पेसिफिक वे वी स्पोकन अबाउट कि किस तरह से तुम डिफाइन करोगे. हाउ डू यू डिफाइन इट? You say equilibrium is a state of balance where there is no tendency for price and quantity to change. Graphically, it is where the demand and the supply curve intersects. At PO or at equilibrium price, the quantity demanded is equals to quantity supplied. That's a whole, you're covering all grounds. Then obviously you have to talk about what if the price is below equilibrium, and अब तक तो सबको पता होना चाहिए below equilibrium पे quantity demanded जो है वो ज्यादा है और quantity supplied जो है वो कम है. Hence, there is a shortage. Whenever there is a shortage, it signals to the producer, ये role of price मैं बता रहा हूँ, it signals to the producer, price बढ़ाओ. जैसे जैसे price बढ़ती है, consumer की rationing कम हो जाती है और producers की allocation बढ़ जाती है. Do you see the words that I've used? I've used the word consumers की rationing कम हो जाती है और producers की allocation जो है वो बढ़ जाती है. So price talks about allocation and rationing. The demand curve पे consumer अपनी income को ration करता है towards goods और producers अपने resources को allocate करता है towards production of good. Understood? उसी तरीके से if we say the price is above equilibrium, let's say at P2, तो P2 के ऊपर क्या हो रहा है? So you would notice कि जी क्वांटिटी डिमांडेड, बिकॉज ये डिमांड कर्व को इंटरसेक्ट हुआ और क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो ज्यादा है. देयर इज अ सरप्लस बिकॉज क्वांटिटी supplied is greater than quantity demanded. What should happen? Well, the price should fall. When price falls, consumer rationing increases and producers allocation decreases until the equilibrium is reached. So a disequilibrium is a state of imbalance where there is tendency for price and quantity to change. ठीक हो गया. Disequilibrium दो किस्म के होते हैं, shortage and surplus. And if there is no government involved, the markets will always move towards uh, equilibrium. अब इसके बाद जो इसके बाद बात होती है वो तुम्हारी होती है demand and supply shifts and what your new equilibrium is going to be. Honestly, I can't spend time and talk about कि demand को कौन सी चीजें shift करती हैं और supply को कौन सी चीजें shift करती हैं. Simple है, demand के लिए
वो चीजें जो कंज्यूमर्स को अदर देन प्राइस, बिकॉज रिमेंबर मूवमेंट अलोंग द कर्व वर्सेस शिफ्ट, देयर इज अ बिग डिफरेंस। तो हमारा आइडिया क्या था कि अगर हमारे पास एक सर्टेन इक्विलिब्रियम अगर अचीव हुआ हुआ है, उसके बाद अगर सर्टेन डिमांड और सप्लाई का उसमें शिफ्ट्स आ जाए तो क्या होगा। ओके, तो जल्दी से बना भी देता हूँ। आई डोंट, इवन दो आई एम सेइंग मैं नहीं करता, लेकिन फिर भी कर देता हूँ। वन इंपॉर्टेंट थिंग जो इस पार्ट के अंदर आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर अटेंशन इज दिस। जब डिमांड कर्व में शिफ्ट आएगा फॉर अ नॉन प्राइस रीजन, तो सप्लाई में मूवमेंट क्रिएट होगी, क्वांटिटी सप्लाइड। You can also call it extension in supply. You see that there is an extension in supply taking place right here. डिमांड में शिफ्ट, इनकम हो सकता है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, लोगों का फैशन टेस्ट वगैरह चेंज होना, वेदर, देयर आर प्लेंटी ऑफ रीजंस, बट ये हो गई है पहली बात। इफ देयर इज अ फॉल इन द डिमांड, अगेन डिमांड में अगर शिफ्ट आया है तो मूवमेंट किस में आएगी, सप्लाई कर्व में मूवमेंट आएगी। ये क्या कहलाया जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, उसी तरह से अगर सप्लाई कर्व के अंदर शिफ्ट आएगा, सप्लाई अगर लेट्स से इंक्रीज हो जाती है, व्हाट्स गोना हैपन, वेल, अब ये क्यों शिफ्ट आया होगा, सम सॉर्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज हो गया, प्रोडक्टिविटी लेवल्स में कोई डिफरेंसेस आ गए, तो उसकी वजह से इफ यू नोटिस सप्लाई में शिफ्ट आया है और डिमांड में मूवमेंट क्रिएट हुई है। क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस गोज डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, प्योर लॉ ऑफ डिमांड है। ठीक है, और डिमांड में मूवमेंट है, इसको हम एक्सपेंशन या एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। सिमिलरली लास्ट थिंग, अगर सप्लाई के अंदर ड्रॉप आ जाए तो फिर क्या होगा, सप्लाई के अंदर ड्रॉप आता है, प्राइसेस बढ़ती हैं, contraction in demand takes place as a result, movement along the curve right here you can see. What if there's double shift? डबल शिफ्ट के बारे में हमने क्या सीखा है, जब भी डबल शिफ्ट होगा तो प्राइस और क्वांटिटी में से एक वेरिएबल जो है वो क्वेश्चन मार्क होता है। दैट इज फॉर यू टू फाइंड आउट हाउ, जिसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा उसका ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होगा, लेकिन प्राइस और क्वांटिटी के अंदर जो है तो वो तुमको देखना है। यू कैन यू नो ट्राई एंड मेक डिमांड और सप्लाई का शिफ्ट एंड डिटरमिन फ्रॉम देयर। फिर इसी पार्ट को फिर मैं जरा लेके चला जाता हूँ, एक थोड़ा सा एक चेंज लेकर आता हूँ। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस क्या था भाई वो, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस फॉर अ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई कर्व। हमने कहा ये डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व और ये मार्केट में इक्विलिब्रियम चल रहा है। कंज्यूमर सरप्लस हम कहते थे, कंज्यूमर सरप्लस इज द एरिया बिलो द डिमांड कर्व एंड अबव द प्राइस। क्योंकि सरप्लस, कंज्यूमर का सरप्लस क्या है, कंज्यूमर का सरप्लस इज that they are willing to pay a high price for a quantity, they're willing to pay a high price, but they're only paying this much, what is the market price. So they are benefiting, they could have paid extra but they don't need to. So as long as the demand is greater than the price, ये हमारा consumer surplus होता है. From producer's perspective, the producer was willing and able to sell for a lower price, right, on the supply curve, willingness and ability, but they end up charging a higher price for it. So this entire area above the supply curve and below the demand, the below the market price shows the producer's surplus. ठीक हो गया, ये सारी सिचुएशन यहां पर है एट इक्विलिब्रियम। जब हम लेटर ऑन टैक्सेस वगैरह की बात करेंगे तो विल नोटिस कि किस तरह से ये सरप्लसेस के अंदर वेरिएशन या डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस। इनकी जो डेफिनेशंस हैं प्लीज याद करो। व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? it's the advantage the consumer gets. Yeah, it's the difference between what the consumers are willing to pay and what they actually pay. It's obviously an advantage to the consumer. They're getting more from it.
सोसाइटी का सरप्लस क्या होता है? सोसाइटी का सरप्लस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों सोसाइटी का हिस्सा है। तो सोसाइटी के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर को नहीं देखोगे, यू विल लुक एट द होलसम पिक्चर। ऑलराइट, एक्सीलेंट, ग्रेट। मूविंग ऑन, स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस। इलास्टिसिटी के ऊपर आते हैं। देखिए जी, एक अच्छा आंसर क्या होता है? नंबर वन, पहले तो अपने दिमाग में क्लैरिटी लेकर आओ, ये इलास्टिसिटी के चक्कर में you're messing up on it। इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी एक मेजरमेंट का टूल है। वो क्या मेजर कर रहा है? वो ये मेजर कर रहा है कि जब भी आप डिमांड के अंदर आप कहते हो ना प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज आता है, तो कितना बड़ा चेंज आता है, कितना बड़ा प्राइस चेंज से कितना बड़ा क्वांटिटी चेंज क्रिएट होता है। दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट। So it measures the responsiveness in quantity demanded due to change in price। फॉर्मूला लिखना क्या जरूरी है? फॉर्मूला लिखना मस्ट है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, प्लीज वर्ड्स में लिखना। परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? इलास्टिक वर्सेस इन इलास्टिक। सबसे पहले तो ये फर्क बताना लाजिम लाजिम है, हर ऐसे के लिए मैटर करता है। इलास्टिक के केस के अंदर आप बोलते हो जो परसेंटेज चेंज है डिमांड में वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज के प्राइस से एज कंपेयर टू इन इलास्टिक। इन इलास्टिक में कम वेरिएशन आती है क्वांटिटी में। फिर इनकी वैल्यू की बात करो प्लीज। ग्रेटर देन वन होता है, लेस देन वन होता है। उसके अलावा क्या कह सकते हो? उसके अलावा यू कैन से एग्जांपल दे सकते हो, नंबर वैल्यू के साथ प्ले अराउंड कर सकते हो। फॉर्मूला के साथ नंबर वैल्यू के साथ प्ले कर लिया तुमने। इलास्टिक इन इलास्टिक प्रूफ कर दिया कि 5% इन चेंज इन प्राइस लीड्स टू 10% चेंज इन क्वांटिटी, हेंस इलास्टिक। वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आती है। अच्छा, when we say कि भाई फोकस करो इलास्टिक इन इलास्टिक पे, तो प्लीज डोंट फॉरगेट दैट there are other three types of elasticities also, right? So you can't ignore the other three types। पुराने जमाने में एक दफा एक ऐसे आया, उसने कहा अगर सप्लाई का, वो सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से था, इन इलास्टिक और फिक्स सप्लाई बताओ। तो फिक्स वाली तो परफेक्टली इन इलास्टिक हो जाती है, ठीक है? तो उसका भी ख्याल करना है तुमने। तो यू नीड टू नो दी अदर वंस ऑल्सो। यू कांट बी लाइक नहीं जी एक ही से आपने करना है। उसके अलावा जब आप डायग्राम की बात करते हो तो इसका डायग्राम जो होता है वो काफी हद तक फ्लैट होता है, सजेस्टिंग के क्वांटिटी में बड़ा चेंज आएगा। और इसका जो होता है वो लॉट मोर स्टीपर होता है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट बिट क्या है इसके अंदर? ये तो चलो तुम्हें 2-3 मार्क मिल जाएगा। बाकी 2-3 मार्क, अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स पीडी। प्लीज डिमांड के फैक्टर्स और सप्लाई के फैक्टर्स को मिलाने की जरूरत नहीं है, मत करना ऐसी गड़बड़। आसान में 2-3 बता देता हूँ जो मैंने तो आई एम श्योर बहुत सारे लिखे हुए होंगे वर्कबुक के अंदर, पर 2-3 के ऊपर फोकस कर लो। एक, अवेलेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस। अवेलेबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस, क्या फर्क हो गया? कोक और पेप्सी की बात कर लेते हैं। ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या है? कोक, पेप्सी, कोला नेक्स्ट, सूफी कोला, बहुत सारे हैं। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव में तो सिर्फ कोक है, यू अंडरस्टैंड? तो ये अट्रैक्टिवनेस और अवेलेबिलिटी का फर्क है। कितने ऑप्शंस हैं और उनमें से वो कितने अच्छे ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज, यू वांट टू टॉक अबाउट द रिलेटिव expense that goes in something which takes a large percentage of your income. What have we said about that? If something takes a large, वो elastic है। Something takes a small percentage of your income, it's not going to make, even if price changes, it's not going to make much of a difference to your expense. It's negligible, not so important. And lastly, it's the time period।
that you have available, the short run and the long run. ये क्या है? कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि अगर एक गुड की प्राइस चेंज होती है तो लोग कितनी इजीली स्विच अवे कर सकते हैं उसके अंदर। अब ऑब्वियसली तुम्हारी हैबिट्स, एडिक्टिवनेस कम्स इनटू प्ले, और कितने टाइम में तुम हैबिट चेंज भी कर सकते हो। तो लॉन्ग रन में यूजुअली गुड टेंड्स टू बिकम इलास्टिक, और शॉर्ट रन के अंदर inelastic, right? It's a general idea. इन तीन के साथ वर्क करो। ज्यादा से ज्यादा अगर 8 मार्क का क्वेश्चन है तो तुमको 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ अपनी आइडिया को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, एंड दैट्स अबाउट इट। ठीक है, सो इट्स अबाउट द अवेलेबिलिटी एंड द अट्रैक्टिवनेस। जैसे मैंने थोड़ा सा ब्रेक डाउन किया था नोट्स वगैरह के अंदर, वी सेड द स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांड। ठीक है, now that's about the attractiveness कि उस ब्रांड की क्या स्ट्रेंथ है। Levi's, everyone knows Levi's jeans is one of the best, इट्स a strong brand, उसकी एक attractiveness ज्यादा है तो उसकी डिमांड inelastic हो जाएगी। iPhone to a degree would follow the same suit, you know। और फिर अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव की बात हो जाती है कि और कितने ऑप्शंस हैं, बहुत क्लोज वाले और नॉन क्लोज वाले भी हो सकते हैं, राइट। तो ये अपनी जगह बात हो जाती है। मूविंग ऑन, इसके अंदर इवैल्यूएशन मैं आखिरी में सबकी एक साथ ही कर दूंगा। अम, दूसरा तुम्हारी आ जाती है YED, डिमांड कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से। YD, again, percentage change in quantity demanded due to percentage change in income. इसमें तुमको क्या पता होना चाहिए? नंबर वन, देयर टू थिंग्स। एक, साइन, अब से साइन मैटर करेगा। बाकी दो इलास्टिटीज, डिमांड की बाकी दो इलास्टिटीज के अंदर साइन मैटर करता है। साइन एंड साइज, दिस इज व्हाट्स गोना मैटर अबाउट YED जो तुम निकालोगे। साइन के अंदर हमें पता है प्लस मीन्स ये एक नॉर्मल गुड है और माइनस मीन्स ये एक इंफीरियर गुड है। ठीक हो गया। जीरो का क्या मतलब होगा? इनकम चेंजेस बट नथिंग हैपेंस टू द डिमांड, या नेसेसिटी कह सकते हो, हाईली नेसेसिटी गुड। साइज के अंदर क्या फर्क होता है? साइज में यहाँ पे हम 3 हिसाब करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ख्याल करना, गौर से देखो। YD अगर लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो हम इसको इलास्टिक तो कहेंगे, इन इलास्टिक कहेंगे, और इसको हम नेसेसिटी कहेंगे। इट्स अ नेसेसिटी गुड। ठीक है, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो हम इसको नॉर्मल के अंदर लग्जरी कहेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है? तीसरा इसमें तो कुछ भी नहीं है, या उसके बाद बस इलास्टिक, इन इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक हो जाता है, इन इलास्टिक हो जाता है, या देयर इज नो थर्ड। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट आई वाज थिंकिंग। इसमें तुमने फर्क करना है प्लस माइनस। अच्छा, इंफीरियर के अंदर कोई इलास्टिक इन इलास्टिक का डिस्कशन इज नॉट रेलेवेंट, डजंट मैटर, कोई टेंशन नहीं है। नॉर्मल के अंदर इलास्टिक और इन इलास्टिक का तुमने ख्याल करना है, दैट्स अबाउट इट। फिर इसके जो डायग्राम्स है वो देख लेना अपने एंड के ऊपर। नोट्स में देयर आर वेरियस डायग्राम्स दैट वी डेल्ट विद। इनकम के इंक्रीज होने से कैसे शिफ्ट आता है। सो बाय द वे, आई विल जस्ट टेल यू, द वन थिंग आई विल टेल यू इज, पीडी के अंदर अगर प्राइस चेंज होती है तो इट्स यूजुअली अबाउट द स्लोप, और जब हम स्लोप की बात कर रहे होते हैं फ्लैटर और स्टीपर के अंदर, तो वी आर टॉकिंग अबाउट मूवमेंट अलोंग द कर्व, राइट। इनकम क्योंकि हमें पता है इज अ नॉन प्राइस फैक्टर, तो इनकम एक्चुअली क्रिएट्स अ शिफ्ट इन योर डिमांड कर्व टू द राइट और टू द लेफ्ट। ठीक है, मूविंग ऑन। फिर उसके बाद तुम्हारे पास क्रॉस वेलोसिटी आ जाती है, XED, और XCD के अंदर आप कहते हैं जी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉर गुड ए डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड बी। इसमें भी साइन एंड साइज मैटर। साइन में अगर प्लस आ जाए तो प्रूफ करना आना चाहिए तुमको कि ये
plus is for substitute, and minus is for complements, and zero is for, अगर जीरो आ रहा है तो ना प्लस है ना माइनस है, हम कहते हैं अनरिलेटेड, कि एक ही प्राइस की वजह से दूसरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। दैट्स इट, सिंपल, अनरिलेटेड। अब जहां तक साइज की बात है, द ग्रेटर द वैल्यू, एक्ससीडी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन है तो हम कहते हैं इलास्टिक है, दैट मीन्स देयर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द साइन। और अगर एक्ससीडी लेस देन वन है तो हम कहते हैं इनइलास्टिक, दे आर नॉट क्लोज सब्स्टिट्यूट्स and they are not close complements, again depending on the size। जहां तक इस पूरी सिचुएशन की इवैल्यूएशन है या यूज है, देखो जी, गौर से सुनो। पीईडी की जो इंपॉर्टेंस है वो रेवेन्यू के साथ लिंक्ड है। रेवेन्यू, तुमसे पूछ सकते हैं इन इलास्टिक अगर गुड है जिसकी वैल्यू लेस देन वन है, तो इसके केस के अंदर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हमें प्राइस को क्या करना चाहिए? ठीक, क्या करना चाहिए? तो आप कहते हो प्राइस बढ़ाना चाहिए, या आप पूरा एक्सप्लेन करो, राइट? इट्स अ गुड मार्क फॉर इट। और अगर लेस देन वन हो जाए तो आप बोलो कि जी प्राइस, सॉरी ग्रेटर देन वन हो तो आप प्राइस जो है वो बढ़ा दो, इलास्टिक के अंदर प्राइस कम कर दो। असल ट्रिक आता है जब इक्वल्स टू वन है, विच मीन्स व्हाट, यूनिटरी, तो कुछ ना करो, स्टेबल रहने दो, बढ़ाने कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब जहां तक नेसेसिटी की बात आती है, देखो रिमेंबर नेसेसिटी पीडी के अंदर भी तुमने पढ़ा है, जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक को कहते हैं नेसेसिटी। इनकम इलास्टिसिटी के अंदर लेस देन वन, जीरो भी हो सकता है, तो जीरो से लेस देन वन, लेकिन वाई डी के अंदर। ठीक है, तो नेसेसिटी तुम वाई डी से भी प्रूव कर सकते हो और पीडी से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो वाई डी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो से लेके माइनस वन। ठीक है, बुक्स के अंदर सिर्फ लेस देन वन बोलते हैं, कि लेस देन वन। नियर जीरो कह लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा, जितना नियर जीरो हो उतना नेसेसिटी गुड है वाई ई डी के अंदर। ओके जी, तो पहला केस पीडी का रेवेन्यू के साथ, या फिर तुम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की भी बात कर सकते हो कि प्राइस चेंजेस, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है और प्राइस चेंज होगी तो हाउ मच योर डिमांड इज गोना बी इम्पैक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जा सकते हो उस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम इलास्टिसिटी, इनकम्स जो चेंज होती हैं, इनकम्स चेंज होती हैं, ये पूरी इनकम्स, जब मैं इनकम्स की बात कर रहा हूँ तो इकोनॉमी में कंज्यूमर्स की इनकम की बात हो रही है, तो मैं इसको ज्यादातर लिंक करता हूँ इकोनॉमिक साइकिल्स के ऊपर। इकोनॉमिक साइकिल्स, बूम एंड रिसेशन। बूम एंड रिसेशन की वजह से लोगों की इनकम्स के ऊपर इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से अगर तुम्हारा गुड नॉर्मल है तो डिमांड बढ़ेगी, इंफीरियर है तो डिमांड गिरेगी। थोड़ा सा फर्म के कंट्रोल से बाहर है इकोनॉमिक साइकिल, राइट? अब जहां तक एक्ससीडी की बात आ जाती है, तो एक्ससीडी जो है वो तो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स और सब्स्टिट्यूट्स यानी राइवल्स के ऊपर फोकस्ड है। राइवल्स, या आई डोंट नो व्हाट टू से टू द कंपनीज जो आपकी कॉम्प्लीमेंट्स हैं, थोड़ी सी लैटरल इंटीग्रेटेड बिजनेसेस जो होते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट हो। सो आउट ऑफ दिस थ्री, मेरे लिए सबसे रिलायबल जो है, आई वुड से मेरे लिए सबसे रिलायबल पीईडी है, राइट? बिकॉज पीईडी के अंदर मेरी प्राइसिंग और मेरी डिसीजन मेकिंग के ऊपर चीजें इन्वॉल्व है, तो आई हैव बेटर कंट्रोल ओवर दैम एज कंपेयर टू एक्ससीडी एंड वाईडी, आई हैव लेस कंट्रोल ओवर दैम। अब जहां तक पूरे कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी का इशू है, तो हम जब इवैल्यूएशंस की बात करेंगे तो इन आवर इवैल्यूएशन हम पूरे इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट को ही डिस कर सकते हैं कि भाई ये पूरे कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है, क्योंकि
एक तो आप जो सर्वे या जिस भी इंफॉर्मेशन से आप इसका डेटा उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी इतनी प्राइस चेंज करोगे तो इतना क्वांटिटी में इम्पैक्ट आएगा, तो ये डेटा कितना पुराना है या कितना नया है, इसकी वैलिडिटी, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, क्या ये हर सीजन पे अप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्या इसकी कैलकुलेशन में तो कोई एरर्स नहीं है, क्योंकि स्टेटिस्टिकल मेथड्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाती है, राइट? तो अगर इकोनॉमी में लोगों की इनकम चेंज हो रही है, तो अगर टाइप्स ऑफ गुड्स आर आल्सो चेंजिंग इन द इकोनॉमी, if income is rising, do you think people will continue to consume the same product over and over again? Well, there are newer, better products which come in the market and the old one dies out. तो वो कम भी हो जाते हैं, right? तो वो फिर मार्केट से बाहर निकल जाएंगे. You understand that? So income के अंदर भी, you can't just ऐसे नहीं हो सकता. अब जहां तक राइवल्स और उसकी बात है, अगेन उसके अंदर भी राइवल्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी, राइवल्स ने कितने से प्राइस चेंज किया, उसकी वजह से कितना बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, बाकी एलिमेंट्स भी होते हैं, अगेन बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स वी से कि भाई उसकी वजह से जो है कुछ तो इम्पैक्ट आएगा, या जैसे भी इम्पैक्ट आएगा वी डोंट नो, कुछ तो फर्क आता ही है. सो अलोंग दोज लाइंस, आई नो आई एम जस्ट ट्राइंग टू रश आउट ऑफ दिस, बट प्लीज ये अपने एंड के ऊपर खुद करो. आई टोल्ड यू, जब हम कोई ऐसे वगैरह कर रहे होंगे तो विल डील विद दैट. मोस्ट ऑफ यू टोल्ड मी कि सर थोड़ा फोकस इलास्टिसिटी पे करना है तो पीईएस के ऊपर करो, so let me spend a few extra minutes on this. आइडिया वो है, प्रोड्यूसर के ऊपर माइंड शिफ्ट कर रहे हो. whenever there is a change in the price, by how much is the producer able to change their supply by. आइडिया बाकी सारा वो ही है. PES greater than 1 is elastic, less than 1 is inelastic, equals to 1 is unitary, वगैरह वगैरह. बट द मेन आइडिया हियर इज कि भाई जब प्राइस इंक्रीज होती है तो सप्लाई के अंदर कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता है. इज इट इलास्टिक लाइक दिस? एक सेकेंड. जब प्राइस चेंज होती है तो क्या सप्लाई में बहुत लिमिटेशंस हैं या सप्लाई बहुत आराम से चेंज हो सकती है? दिस इज द डायग्राम दैट यू थिंकिंग इन योर हेड एंड यू थिंकिंग लाइक अ प्रोड्यूसर. प्लीज, सप्लाई के रीजंस डिमांड के रीजंस नहीं होते. मत करना. आदत हो गई है तुम्हारी करने की, मेहरबानी करो, डोंट डू इट. होता क्या है कि प्राइस के बढ़ने की वजह से क्वांटिटी के अंदर जो है हल्का सा इंक्रीज आ सकता है. दैट इज शोइंग दैट प्रोड्यूसर डज नॉट हैव सो मच एबिलिटी टू इंक्रीज द सप्लाई. Whereas over here, what we notice is a small increase in price leads to a very large increase in quantity. Diagram सिर्फ उस सूरत में बनाना अगर मांगे तुमसे. Otherwise, don't waste time on making these diagrams. We've seen essays in which kids do make it. There is no mark for this if they have not asked for it. बात क्या है? रीजंस पीछे क्या क्या है? आई टेल यू थ्री, बिकॉज तुमने तीन से ज्यादा लिखने की जरूरत है ही नहीं. एक रीजन जिसकी वजह से इलास्टिक इनइलास्टिक हो सकता है इज द अवेलेबिलिटी, सॉरी, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक. ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड माल रखा हुआ है वेयरहाउस के अंदर कि नहीं रखा हुआ में. नंबर टू, टाइम पीरियड. कितना टाइम पीरियड है फॉर मी टू एडजस्ट supply, yeah, how long does it take to make a product? Third, मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी की क्या सिचुएशन है? Am I at full capacity? Am I under capacity? What is the case? यूजली क्या होता है, ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि if there are many number of firms, ठीक है, if there are many number of firms, what's going to happen? Well, chances are that everyone's not going to be at full capacity. So there will be unemployment in them. So if price increases, जिनमें unemployment है, they'll carry on and they'll produce the output. Supply elastic हो जाएगी.
ठीक है। टाइम पीरियड के अंदर एक तो ये बात है कि अच्छा जी इस सीजन जो है पोटेटोज शॉर्ट थे मार्केट में, तो इफ आई हैव नेक्स्ट सीजन या नेक्स्ट सीजन की बात करें so I can acquire more land and I can make adjustments if I have a lot of time period. सेकंड एक तो ये होता है कि एक जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी पोटेटोज को ग्रो करने में मुझे एक इकोनॉमिक साइकिल की जरूरत है। तो मैं क्या करूंगा, इफ आई कैन यूज फर्टिलाइजर्स एंड आई कैन शॉर्टन द साइकिल सो देन आई कैन प्रोड्यूस मोर। ओके। तो टाइम पीरियड के अंदर तुम्हारे पास दोनों साइड का एलिमेंट होता है। एक तो हाउ मच टाइम डू आई हैव अवेलेबल टू चेंज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड सेकंड इज हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मी टू प्रोड्यूस अ गुड। तो एक बोइंग बनाने में मुझे 3 महीने लगते हैं। इफ I can shorten the cycle by getting pre-made raw material या एक connected थोड़े बड़े parts मेरे पास साथ आ जाएं तो मुझे उसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, तो I can pace up the project or something like that। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा टाइम पीरियड और प्रोडक्टिव कैपेसिटी इज अबाउट कि आपके पास फैक्टर्स ऑफ रिसोर्स, आप फैक्ट्री फ्लोर की मशीन जो है वो, हम एग्जांपल इसको ऐसे देते हैं जैसे अगर सुपर पीक स्क्रीन सुपर बनाती है और 24 आवर्स मशीन चल रही है, तो दैट मीन्स उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी फुल है, प्राइस गोज अप, दे कांट इंक्रीज द सप्लाई। लेकिन अगर वो सिर्फ 12 घंटे की शिफ्ट कर रहे हैं तो दे हैव एम्पल टाइम अवेलेबल, दे कैन इजीली इंक्रीज द सप्लाई। दैट्स आवर मेन आइडिया ओवर हियर। ये 3 फैक्टर्स के साथ रखो। अदर देन दीज अगर तुमने और फैक्टर्स पढ़े हैं दे प्लेंटी, तो तुम उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। अब इसके अंदर बात असल के अंदर ये हो जाती है कि जी इफ दे आस्क यू कि अगर बिजनेसेस हाउ इजीली कैन दे मेक एन इनइलास्टिक सप्लाई इनटू एन इलास्टिक सप्लाई। अब इस पे डिस्कशन जो है ये तुम्हारा इवैल्यूएटिव डिसीजन जो है या स्टेटमेंट जो है ये इज वर्थ द डिस्कशन। हम कहते हैं अगर स्टॉक लो है तो इनइलास्टिक है, नो या लो। और अगर इफ यू हैव you know many stock available, just ignore the grammar here, तो फिर elastic हो जाएगा। I hope you get the idea, right? So if you have large stock available it becomes more elastic। तो लो इन्वेंट्री से हाई इन्वेंट्री कैसे जा सकते हो? इज देयर अ पॉसिबिलिटी टू डू दैट? कुछ गुड्स होते हैं जो पेरिशेबल होते हैं, उसका क्या करो? अगर रेफ्रिजरेटेड या फ्रीजिंग कर सकते हो एक प्रोसेस और ऐड करके तो देन डेफिनेटली हो सकता है। फर्टिलाइजर की यूज से अगर आप एक्सेस प्रोडक्शन कर सकते हो एंड देन यू कैन स्टोर इट इन द लेटर ऑन पीरियड्स, बिल्कुल हो सकता है। टाइम पीरियड, द टाइम इट टेक्स फॉर अ प्रोडक्ट टू प्रोड्यूस, हमारे पास हर किस्म की अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स आ गए हैं, हमारे पास फर्टिलाइजर्स आ गए हैं जो स्पीड अप कर देते हैं प्रोसेस को। तो इन इलास्टिक बन सकता है। प्रोडक्टिव कैपेसिटी के अंदर ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यू हैव टू चेंज योर मशीन्स, यू हैव टू चेंज सर्टेन अदर फैक्टर्स। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी को चेंज करना जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग ड्यूरेशन वाला एलिमेंट है। तो ये दैट माइट नॉट बी सो इजी फॉर यू टू डू। तो वो ज्यादातर तुम्हारी बात करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट्स के अंदर। सप्लाई की जब बात होती है तो एग्रीकल्चर, बिकॉज वी रिमेंबर manufacturing is mostly elastic, you just need to acquire resources and you can increase production। Agriculture is usually inelastic due to obviously the weather dependency and all। तो उसका फिर हम solution के अंदर हम buffer stock का idea discuss करते हैं, which we will a little later, but that's how the PES का concept goes। Again, PES की जो है your ability to increase supply is not so readily available। Sometimes you cannot acquire those factors of production so easily। तो challenges अपनी जगह उसके अंदर होते हैं। ठीक है। बाकी तुमने वो फिर डिमांड एंड सप्लाई और उसके साथ ये देखना है। एंड द लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर इज अबाउट इलास्टिसिटी को लेके कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस के डिस्कशंस को। ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज, क्योंकि ये डिस्कशंस हैं तो इम्पोर्टेंट, तो 2 मिनट दो मुझे
इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट के साथ लेट मी ट्राई एंड सम देम ऑल अप, ताकि किसी किस्म की तुम्हारे को कॉम्प्लिकेशन इसमें ना आए कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों के आइडिया में. I don't know how many diagrams will work, but I'll try to make maximum and clarify the idea. Okay जी. ना नॉर्मल तो मैंने करा दिया तुमको कि नॉर्मल वाला कैसा होता है. अब अगर डिमांड का विन इलास्टिक है, ठीक है, वर्सेस अगर डिमांड का इलास्टिक है, दोनों की मैं कोशिश करूंगा बिफोर, बल्कि इनफैक्ट दोनों की लाइंस बनाने से पहले आई विल डू वन मोर थिंग. ओके, दिस इज व्हाट आई विल डू, ताकि तुम्हें एक कंसिस्टेंसी नजर आ जाए. ठीक है, ये वर्सेस ये प्राइस, ये क्वांटिटी. If I take this one here, they're exactly the same. When I make inelastic, okay, versus when I make elastic. अब अगर for any reason, if price goes up, कितना? Let me change by same amount, ताकि मैं दोनों तरफ exactly same amount change करूं. Price increases, okay. What happened? Equal, almost equal. What has happened? Consumer surplus के अंदर जो फॉल आया है वो किसमें ज्यादा है? ठीक है, तो क्योंकि डायग्राम में एक्यूरेसी रखी है, तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि यहाँ प्राइस बढ़ने से ये कंज्यूमर सरप्लस लॉस है, और यहाँ प्राइस राइज होने से ये कंज्यूमर सरप्लस लॉस है. ठीक है, अगर तुम नेट इफेक्ट देखो दोनों केसेस के अंदर, तो देयर इज अ लार्जर लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन इलास्टिक के केस के अंदर. ठीक है, एंड देयर इज अ स्मॉलर लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन दिस वन. ये मैं सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर कर रहा हूं? लॉस इन कंज्यूमर सरप्लस को. दैट एरिया, विच एरिया? लेट मी नंबर इट. एरिया 1 and 2 वर्सेस 1 and 2. You see that? लेकिन when I'm comparing के ओवरऑल कंज्यूमर सरप्लस जो था इन इलास्टिक के केस में, उस टोटल के कंपैरिजन में लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस बहुत नेग्लिजिबल है. लेकिन इसमें अगर नोटिस करो तो पूरे कंज्यूमर सरप्लस का एक बहुत बड़ा चंक निकल जाता है. यू अंडरस्टैंड? तो इलास्टिक के केस में एज कंपेयर टू प्रीवियस कंज्यूमर सरप्लस, अब जो कंज्यूमर सरप्लस बचा है वो बहुत थोड़ा सा बचा है. इन इलास्टिक में अभी भी बहुत सरप्लस बचता है, लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द साइज ऑफ लॉस, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इनफैक्ट इतने डायग्राम मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी. अगर तुम एक ही डायग्राम में ये बात समझ जाओ तो देन इट्स सॉर्ट ऑफ सॉल्व. इनफैक्ट व्हाट आई विल डू इज दिस, आ जाओ जी, एक ही डायग्राम में दोनों बात को प्रूफ करके देखना है. प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी ड्रॉप्स, हो गया. तो कितना कंज्यूमर सरप्लस एरिया है? लेट मी हाईलाइट इट. दिस इज द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस. ओके, दिस इज द लॉस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इन इलास्टिक के अंदर बिकॉज ऑफ द प्राइस राइज. टोटल एरिया के हिसाब से इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ परसेंटेज. ओके, अब इसी के अंदर ही मैं लेट मी डू एन इलास्टिक का कर्व. इसी के अंदर ही अगर ये होता इलास्टिक, राइट, वी नो इट्स मच मोर फ्लैटर. अगर ये है, तो अब इसके केस के अंदर क्या हुआ कंज्यूमर सरप्लस को? वही प्राइस चेंज, कंज्यूमर सरप्लस हाईलाइट करता हूं. इसमें कंज्यूमर सरप्लस लॉस इज दिस एरिया. डू यू ऑब्जर्व कि इन इलास्टिक के अंदर यू हैव एन एक्स्ट्रा एरिया राइट ओवर हियर
जो कंज्यूमर लॉस के अंदर आ रहा है। सो इन इलास्टिक के केस के अंदर देयर इज अ बिगर चेंज इन कंज्यूमर सरप्लस, इन इलास्टिक के केस में देयर इज अ बिगर चेंज इन प्रोड्यूसर सरप्लस आल्सो। ओके, ये चीज तो मैं फिर बाकी उसके साथ भी अप्लाई कर सकता हूँ।